Assalamualaikum, 8th semester. Yes, we have started the future of English language. So here we are just going to continue the enrichment of a new English topic. So we studied about the first para of this very topic. So just continuing this topic from here, from this third para. Let me read it first. It is like describing this as figured speech, okay, something altogether different from formal writing. MC Warder states that what we are witnessing through this phenomena is actually an emergent complexity of the English language. Over here, just continuing from the previous topic, that texting is actually text, phone, mobile text is actually going to kill a language. And okay, sorry, it is not figure, it is fingered speech. Fingered speech is actually mean that those texts, whatever you do write, whenever you are texting or doing text messages, so at that time whenever you use your finger, so through your finger, when you tap different keyboard, different buttons in the keyboard, the keypad, your phone keypad, and you just create your own speech, just the access of your finger, your thumb and your index finger, thumbs and index fingers. So right here, you are creating a new speech, just the access of your thumbs and finger, index finger especially. So that speech is called fingered speech. Fingered speech means you are just writing through your fingers, and through the access of your fingers you are writing something or creating a speech, okay. So describing this finger speech or text language, something altogether different from formal writing. Obviously, जब आप लोग टेक्स्ट करते हो तो आप फ्रॉम लिखते हो, FRM लिखते हो, आप फॉर लिखते हो तो FOUR की जगह आप फोर फिगर डालते हो, FOR की जगह के लिए वाला फोर के लिए आप फोर लिखते हो, प्लीज के लिए आप PLZ या S लिखते हो, और बिकॉज के लिए आप CX लिखते हो, CZ लिखते हो. तो ये सब क्या है, फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज से हटके आप कुछ लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हो ना. तो इसी के अकॉर्डिंग MC Water states that what we are witnessing through this phenomena is actually an emergent complexity of the English language. यही चीज थ्रेटनिंग है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, जो आप लोगों का फिंगर स्पीच है, जो आप लोगों का टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू आप इंग्लिश लिख रहे हो, आप उसमें शॉर्ट हैंड राइटिंग एक्सट्रीमली ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग लिख रहे हो फॉर योर ओन, जो आप लोगों की मेंबर्स है, आप लोगों के ग्रुप मेंबर्स है, आप लोगों के फेलोज है, उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज को उनको अंडरस्टैंड करा रहे हो ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के लिए. ये इमर्जेंट कम्प्लेक्सिटी है, अपन के लिए प्रॉब्लम्स और इशू इमर्ज कर रहे हो. दिस आर्गुमेंट position simpler English, which texting can easily be defined as the polar opposite of a decline. Instead, it is enrichment. अच्छा, ये तो threats नहीं है ना, हाँ थोड़ी सी difficulty है, लेकिन this is not a threat, ये enrichment है further. But in what regard? I'm confusing over here कि किस लिहाज से ये enrichment है, ठीक है? Polar opposite of a decline. अब ये चीज जो हम मतलब enrichment इस लिहाज से आ रही है कि उसका जो अपना फॉर्मल वर्जन था, FOR का आप FR लिखते हो, या फिर आप लोग 4 डालते हो, डिजिट 4 लिखते हो, ठीक है. तो ये आप लोग इनरिचमेंट दे रहे हो इस इंग्लिश लैंग्वेज को, और पोलर अपोजिट उसको कहते हैं बिल्कुल एक्सट्रीमली ऑन द अदर पोल ऑफ द ऑफ वन थिंग. मतलब एक पोल पे आप लोग कह रहे हो कि ये डिक्लाइन हो रही है, लेकिन इस तरह की राइटिंग इज ऑन द अदर पोल, इज ऑन द अपोजिट पोल, मतलब डिक्लाइन नहीं हो रही, इनरिचमेंट हो रही है और भी सक्सेस मिल रहा है. वैसे होना चाहिए था कि डिक्लाइन होती, लेकिन डिक्लाइन नहीं हो रही. हाँ, फर्दर वो जो फॉर्मल फॉर्म है ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वो नहीं रही, इंग्लिश की जो अपनी एक्चुअल पोजीशन है वो नहीं रही, इनरिचमेंट हो रही है और इसमें एडवांसमेंट आ रही है. लेकिन एक एडवांसमेंट इज गोइंग टू, जिस तरह के आप लोगों ने एक शॉर्ट्स में अभी चल रहा था आजकल, इस कुछ वीक से वो चल रहा है नाउडेज यूट्यूब के शॉर्ट्स पे, कि यहाँ पे वो लिखते हैं कि
वो एक बंदा बोलता है कि इंग्लिश का जो सबसे पहले वर्जन था, जिसमें अगर कोई किसी से पूछता था कि हाउ आर यू, तो वो ऐसे बकायदा पूछते थे हाउ आर यू, ठीक है। तो फिर वो चेंज हो गया हाउ आर यू, ठीक है। फिर वो हाउ यू, हाउ यू, हाउ यू, और फिर आगे वो ऐसे करता है, ठीक है। ऐसे साउंड्स वो निकालते हैं जिसका मतलब होता है कि हाउ आर यू। तो इसी तरह फिंगर टेक्स्ट भी यही इनरिचमेंट ला रहा है, जिसको हम एडवांसमेंट कह रहे हैं, जिसको इंग्लिश लिंग्विस्ट उसको एडवांसमेंट कह रहे हैं, इनरिचमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कह रहे हैं, ठीक है। फॉर एमसी वाटर द डायलेक्ट ऑफ टेक्सटिंग रिप्रेजेंट्स अ न्यू काइंड ऑफ लैंग्वेज, यही बात मैं कह रही हूँ, ये तो एक और नए किस्म की लैंग्वेज हो रही है विद एन इंटायरली न्यू स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले हम एम्फिसाइज जब लिखते थे, एम्फिसाइज, तो उसमें लास्ट में हमारे पास एस साउंड आता था, एस वर्ड आता था, जो कि साउंड जी देता था। आजकल जब हम अमेरिकन इंग्लिश में उसको लिखते हैं तो वो एस साउंड स्विच करके जी साउंड में आ गया। जो चीजें ब्रिटेन इंग्लिश वाले एक चीज को फॉर्मल बना रहे थे, उसको अमेरिकन इंग्लिश वालों ने इतना इजी बनाया, इतना सिंपलर बनाया कि आज अगर आप लोग टेक्स्ट मैसेजेस की बात कर ले तो उससे तो कुछ ज्यादा ही वो एम्फेसाइज, कुछ ज्यादा ही इस तरह के वर्ड्स कुछ ज्यादा ही आसान हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है Isn't this what we are witnessing with simplified English as well? ये तो वही 860 words का जो simplified English था वही वर्जन हमारे पास आया। तो क्या हम ऐसा कोई वर्जन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पास यहाँ पे? What MC Water significantly points out is that there is more than one aspect of modern life that is altering the English language, but its dynamism can be a positive thing. यहाँ पे आप लोग देख ले कि जो एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज है, आप उसका देख लें। what MC Water वो क्या कहते हैं, पॉइंट आउट इज दैट देयर इज नो मोर वन एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि सिर्फ एक लिहाज से तो ये मॉडर्न लाइफ में ये इंग्लिश की ऑल्टरिंग चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बट इट्स डायनामिज्म, डायनामिज्म मतलब डायनामेटिक, डायनम सो क्या कहते हैं, जो डायनामेटिक होता है, लाइक डायनामिक, वो क्या होता है जो मूवमेंट करता है। डायनामिज्म का मतलब है मूवमेंट, और हम कहते हैं ना दिस इज स्टैटिक एंड दैट इज आई एम रियली फॉरगेटिंग द एक्सेंट, डायनामिक, यस, डायनामिज्म मीन डायनामिक, ठीक है। डायनामिक एक जगह पे मुहर्रिक जो हरकत नहीं करता, ठीक है, सॉरी जो मुहर्रक नहीं, हरकत करने वाला, मुहर्रक उर्दू में नहीं, मुहर्रक का मतलब है हरकत जब नहीं करता, और हरकत का मतलब है हरकत करने वाला। डायनामिज्म, डायनामिक का मतलब है, या डायनामिज्म का मतलब है कि जब कोई चीज किसी मूवमेंट में हो, कैन बी अ पॉजिटिव थिंग। ये मूवमेंट ऑफ द लैंग्वेज, ये अल्ट्रेशन ऑफ द लैंग्वेज इज एक्चुअली अ पॉजिटिव चेंज or an advancement in the language, ठीक है। He goes, MC Water goes for so far as to calling texting a linguistic miracle, कि ये टेक्स्ट के थ्रू अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज का एक न्यू वर्जन ले रहे हैं, सो दिस इज अ लिंग्विस्टिक मैरिकल, ये तो एक मौजिज़ा हो रहा है कि जो हमारे पास ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू ये जो शॉर्ट हैंड राइटिंग वाली इंग्लिश आ गई है, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सट्रीमली शॉर्ट हैंड राइटिंग वाली वर्जन आ गई है इंग्लिश की, तो ये एक लिंग्विस्टिक मैरिकल इसको बुलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास MC Water इज नॉट द ओनली वन हु सीज दिस ट्रांसफॉर्मेशन, कि ये वो चेंज है कि MC Water एज अ लिंग्विस्ट, वाटर नहीं, ठीक है, Water as a linguist is not noticing this very change, this very transformation in a positive light, ठीक है। Returning to the concept of a universal or international language, the economist argues that while language may simplify because it is spring because it is expressive and useful. इकोनॉमिस्ट कहते हैं, सिर्फ MC Water नहीं बोलते, बल्कि इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं ही इज एन लिंग्विस्ट, जबकि इकोनॉमिस्ट भी इस बात को क्लेम करें, इस बात को एडमिट करें कि जितना कि लैंग्वेज सिंपल होगा इतना ही वो स्प्रेड होगा। और स्प्रेडिंग का मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है, तो इससे आप जान लें कि इस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन की जा रही है और ये लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूजफुल है।
तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव बन जाती है वो लैंग्वेज और सबसे ज्यादा यूजफुल भी हो जाती है अकॉर्डिंगली इकोनॉमिस्ट, कि जो लैंग्वेज हमारे पास उसका शॉर्टर सिंप्लीफाइड वर्जन मौजूद हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, वेल द इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू अडॉप्टिंग एंड इवॉल्विंग, यस, मेरे पास इसका एडवांस में आंसर है यस, ऐसा ही होगा। एडॉप्टेशन इसमें होगी जैसे कि हमारे पास, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट दैट वी आर हैविंग डिफरेंट वर्जन ऑफ इंग्लिश, डिफरेंट varieties of English, not a version, varieties of English. So our question is it inevitable? Inevitable ka means unstoppable, undeniable, unstoppable and undeniable. Inevitable ka ye matlab hai that languages will arise from the adaptation and evolution of English. Later it may be, perhaps there will be many more official language, yes, if we are having different variety of English language, so those are arisen from this very English language, okay, each with their own distinct vocabulary, yes, every language, every English variety language will be having a slight different vocabulary and rules of grammars as well, all tracing their origins back to English, of course. Different varieties, 60 plus varieties of English language will trace, or its origin will trace back to English, actual English language, but those varieties will having its different, a separate, distinct vocabulary and grammatical rules will be possessing, okay. So obviously the question will be yes, obviously there are significant differences between the education system of today and that of 1,000 years ago and today, okay. Over here we are noticing that very significance of the education system and 1,000 years ago, from ago and today with the internet today. 1000 साल पहले का आप अगर एजुकेशन सिस्टम को ले ले और आज के दौर के इंटरनेट सिस्टम के साथ उसको, चर्च सिस्टम के साथ आप उसको रिलेट कर ले, वी हैव इंस्टेंट एक्सेस टू अ वर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द करेक्ट यूजेज ऑफ लैंग्वेज. सो ओवर हियर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, जैसे उनको कोई नया वर्ड मेरी तरफ, अगर if they are a bit curious and interesting and take interest in the language and new vocabulary and word buildings, so they must go for search, they go to the search engine and they must search for the synonyms, for the antonyms, and from different and its phrasal structure of that very word. So right here उस बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है तो उसको तो एक्सेस है ना, उसको क्या है, एक्सेस है उस सारी इंफॉर्मेशन तक जहां पर उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, टू लर्न, टू नो अबाउट द लैंग्वेज, टू लर्न अबाउट द लैंग्वेज, टू नो अबाउट द लैंग्वेज. तो अगर उसको एक्सेस है तो समझे ना कि ये लैंग्वेज जो है आज के लैंग्वेज और आज के टीचिंग और एजुकेशन के सिस्टम में और कई साल पहले के एजुकेशन सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है. ऑन द करेक्ट यूजेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, यूजेजेस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि वो लोग वही इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे उनको करेक्ट यूजेज ऑफ लैंग्वेज मिल रही है. बट एज वी नो by nature human beings are constantly adopting, and if they find that something works better for them then they will take it on, ठीक है. अगर अब हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, एज वी नो हम सबको पता है कि इंसान की फितरत क्या है, कि वो हमेशा एक नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उसके मतलब जो चीज़ उनके लिए फिजिबल हो जाती है, जो उनको ईजियर होती है, उनके लिए ईजियर होती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस यूज और यस्टरडे यूजेज, तो वो आज के इस यूज को वो अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है. इफ दे फाइंड दैट समथिंग वर्क्स बेटर फॉर देम, अगर उनको यस आई एम नॉट सपोज्ड टू एक्सप्लेन it, then they will take it on. Obviously they will continue, they will start to live with all such adaptations, they will stop using the previous one usage. Perhaps one day in the future translators will be tracing back future languages to their genes इन इंग्लिश. अब क्या है जो हमारे पास आज जो मतलब परहैप्स वन डे इन द फ्यूचर, आगे फ्यूचर में जाके जो ट्रांसलेटर होंगे वो आज के करंट इंग्लिश के साथ फ्यूचर वाले लैंग्वेजेस के जीन्स और ओरिजिन उसके साथ रिलेट करेंगे और उसके थ्रू वो ट्रांसलेशन करेंगे. जिस तरह के हम लोग कहते हैं ये वर्ड जो है ओरिजिनेटेड है फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है. तो इतनी एडॉप्टेशन लैंग्वेज ने की है, इतनी इवोल्यूशन की है लैंग्वेज ने
तो उसकी अगर हम देखते हैं ना, ये करंट लैंग्वेज है, तो हमें आज के दौर में पुराने लैंग्वेजेस का जो रिटन वर्जन है, जो हजारों साल पहले बोली जाती थी, इस्तेमाल की जाती थी, उसका हमें रिटन वर्जन की समझ नहीं आती। तो सिर्फ जो लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, सिर्फ वो आर्कियोलॉजिस्ट जो लैंग्वेज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, सिर्फ वो उसको समझ पाते हैं और वो ट्रांसलेशन कर पाते हैं। द चेंजिंग फेस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, इसको आगे जाके हम कंटिन्यू करते हैं। The changing face of English language, of the English language. One doesn't need to be a world traveler to see that the English language spoken in India does not sound the same as the English language spoken in India. Of course, it is so. अगर इंग्लिश लैंग्वेज कोई सुने अमेरिका में, अमेरिकन के मुंह से, उनके यूजेज में है इंग्लिश लैंग्वेज, तो उस वाले इंग्लिश में, और जो अगर कोई इंडिया या पाकिस्तान में आ जाए और वो जिस तरह के इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करेगा, तो दोनों के यूज में जमीन आसमान का फर्क होगा। बाय द सेम टोकन, इसी तरह अगर आप देख ले, इंग्लिश लैंग्वेज इन Nairobi does not sound the same as the English language in New York, ठीक है। Nairobi doesn't sound, Nairobi जो भी एरिया है, प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का नाम है। And in India, Indian English is becoming less monolithic, meaning that the variety of English spoken in Bangalore differs slightly from that spoken in New Delhi, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात बताई जा रही है कि जो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो एक कंट्री में, उसकी इंडिया में उसकी वैरायटी है, तो उसके एक स्टेट में वो इंग्लिश एक तरह से बोली जाती है और दूसरी जगह पे दूसरी तरह बोली जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है कि मोनोलिथिक का वर्ड यूज किया गया है। लेस मोनोलिथिक का ये मतलब है इंडियन इंग्लिश इज बिकमिंग लेस मोनोलिथिक, मीनिंग दैट कि वैरायटी जो लेस मोनोलिथिक मतलब एक जैसी नहीं रह रही है, कैन डज नॉट साउंड द सेम, विच मीन्स दैट कि उसकी जो साउंड है बेंगलोर में, तो उसका न्यू दिल्ली के स्पीकर से उसका साउंड अलग है, ठीक है। The New Delhi English is influenced primarily by Hindi and is often referred to that as Hinglish. Okay, Hindi वाली जो English है उसको Hinglish बोली जाती है, while the Bangalore English is influenced by Kannada, which is Bangalore's local language, Kannada. Okay, and is often referred to as Kinglish. Bangalore, Kannada, in Bangalore, whatever English is spoken, so their language is Kannada, and that variety of English has some Kannada है, तो Canadian हम बोलेंगे फिर, ठीक है। जो कनाडा का इन्फ्लुएंस इंग्लिश के ऊपर है, तो उस वाले इंग्लिश को फिर कैंग्लिश बोली जाएगी। सो नाउ वी हैव सेवरल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश being used within India. एक इंडिया के अंदर हमारे पास कितनी वेराइटीज मिल रही है, इसी वजह से ये मोनोलिथिक नहीं रह रहा है, ठीक है। अच्छा, so then within English, India, and while all of these are closer to British English than to American English, yes, as we were once colonized by Britain Empire, so that's why being a colony of Britain Empire, we will obviously all such varieties of English that is existing in India and in Pakistan, so that will be influenced by not by American English, by Britain English, okay, British English. So in recent years, we have seen younger generation showing an increasing bias towards Americanism. Despite all its variations, Indian English remains undoubtedly English. यहाँ पे हम लोग एक बात नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास जो अब यंगर्स आ रहे हैं, they are highly influenced by the internet and different services or different apps that is available on internet. So they are taking
different services from all those apps and internet services. So that is making, और actually आपको पता है कि सुपर पावर जो भी कंट्री होती है उसको उसकी लैंग्वेज ही वो एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज फॉर इंटरनेशनल लैंग्वेज कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो अमेरिका इज लीडिंग द होल वर्ल्ड टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देख ले तो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा जो असर रसूख है वो अमेरिका का है। तो अगर इंटरनेट पे जो करंटली हमारी यंगर जनरेशन है वो इंटरनेट से ज्यादा वो ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, वहां से प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं, वहां से डिफरेंट एप्स को यूज कर रहे हैं, हेल्प्स ले रहे हैं, वहाँ के सर्विसेज ले रहे हैं। तो they are inclined towards the Americanism of the English, not the British one English. So despite all of such varieties, our English is undoubtedly remained English, American English है। अब आ जाए इन कीनिया, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इन कीनिया बोथ Swahili and English are official language. ये देखें, in Kenya once a colony over there, but in Nairobi and other urban areas we are seeing a Creole slang known as a sheng. क्रियोल, क्रियोल वो लैंग्वेज होती है जो पिजन के बाद होती है। पिजन तो एक लिमिटेड उसके अंदर होती है, ट्रेड बिजनेस वाले लोगों के अंदर पिजन यूज की जाती है, लेकिन क्रियोल उससे ज्यादा जब पिजन एक्सटेंड हो जाता है तो उसको क्रियोल बोलते हैं। लेकिन क्रियोल इज अ डायलेक्ट, ठीक है, कोई वो डायलेक्ट नहीं होता है, क्रियोल डायलेक्ट से छोटा होता है। तो यहाँ पे जो क्रियोल स्लैंग नोन एज शेंग वो नैरोबी एंड अदर अर्बन एरियाज ऑफ द सेम कंट्री वो बोली जाती है। अब शेंग हैज स्ट्रॉन्ग टाइज टू केनियन पॉप कल्चर, ठीक है, एंड दिस स्लैंग हैज इमर्ज एज अ मींस फॉर यंग पीपल टू कम्युनिकेट इन कोड। अब उनका एक क्रियोल है, वो लैंग्वेज नहीं कहलाया जाता, तो उनका जो पॉप कल्चर है, ठीक है, तो उसके अंदर इस स्लैंग की, अब स्लैंग इज नॉट समथिंग के क्रियोल स्लैंग, स्लैंग उस लैंग्वेज को कहा जाता है जिसमें जो ज्यादा अब्यूसिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब्यूसिव का वो नहीं कहा जाता है जो अच्छा तो वहां पे इमर्ज किया जा रहा है फॉर यंग पीपल टू, अच्छा यंग पीपल के बीच हो रहा है, टू कम्युनिकेट इन कोड। इन कोड का ये मतलब है कि उनका ये प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, एक क्रियोल है, ठीक है। शेंग हैज स्ट्रॉन्ग टाइज टू केनियन पॉप कल्चर, जो सबसे ज्यादा पॉप है, मतलब ज्यादा जो ज्यादा उसमें है, यूज में है और ज्यादा लीडिंग रोल में है, पॉपुलर है, उसको पॉप बोलते हैं। पॉप का मतलब पॉपुलर, ठीक है। तो जो पॉपुलर कल्चर है उसको बोलते हैं। एंड दिस सेइंग हैज इमर्ज एज अ मींस फॉर यंग पीपल टू कम्युनिकेट इन कोड। तो कोड मतलब क्रियोल स्लैंग में वो करते हैं जिसको शेंग बोलते हैं, और वो शेंग क्या है, वो एक कोड लैंग्वेज है। इन शेंग फॉर एग्जांपल द वर्ड फॉर ट्रेजर ट्राउजर इज लॉन्गी, ओके, ट्रेजर is trouser is longi which is derived from the English word long, ठीक है। अब लोंगी जो बोली जाती है, जो ट्राउजर को बोलते हैं उसको लोंगी बोलते हैं शेंग में। तो अब वो लॉन्ग मतलब ट्राउजर एक तो शॉर्ट होता है ना, एक लॉन्ग होता है। शॉर्ट वो होते हैं जिसको हम शॉर्ट्स बोलते हैं ना, शॉर्ट्स, वो जो शॉर्ट मतलब नीज तक या नीज से ऊपर होते हैं, ठीक है, नीज नहीं एल्बोज होते हैं, ठीक है, नीज बोलते हैं ये जो हमारे घुटने होते हैं, ठीक है। तो उसको नीज में बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। एल्बो तो हमारे कोहनियों को बोलते हैं। तो नीज तक जो या नीज से ऊपर होते हैं उसको शॉर्ट्स बोलते हैं। और जब उससे लॉन्ग हो, नीज से होते हैं या फिर मतलब जो नीज से लॉन्ग होते हैं और पैंट साइज मतलब थोड़े अब हमारे पास कैपरी भी आ गए हैं, ठीक है, वो भी वो शॉर्ट्स में नहीं आती। कैपरी जो है वो अलग चीज है, वो शॉर्ट्स में नहीं आते, ठीक है। सो अब लॉन्ग को लेके उन्होंने अपने शेंग लैंग्वेज में उसका ट्राउजर का लॉन्गी बनाया हुआ है। सो आप लोग को मैं यहाँ ये बता दूं कि this is all about मतलब different varieties of the same English language, लेकिन हर एक कंट्री के अपने अपने लैंग्वेज ने, या फिर एक कंट्री के अंदर उनके अपने अपने स्टेट में उस इंग्लिश वैरायटी के अंदर, उनकी जो इंग्लिश वैरायटी है उसके अंदर अपने ही स्टेट के लैंग्वेज। अब सपोज अब केपी का जो इंग्लिश होगा, उन्होंने अपने पश्तो लैंग्वेज का के वर्ड्स उसके अंदर मिला के एक पिंग्लिश, पाकिस्तानी इंग्लिश जो है पिंग्लिश बनाई हुई होगी, ठीक है।
और अगर आप देख ले कि अगर पंजाब में जाए तो पंजाब का जो पाकिस्तान का इंग्लिश है, पंजाबी वर्ड्स उसमें मिला के उन्होंने इंग्लिश में मिला के अपना पिंग्लिश, अपने स्टेट का पिंग्लिश बनाया हुआ होगा, ठीक है। इस तरह सिंधी और बलोची एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, इसी टॉपिक को अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये इंग्लिश लैंग्वेज एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, और हमारी 2 लास्ट क्लासेस जो होगी वो हमारे एक्टिविटी बेस्ड होगी, ठीक है। और बाकायदा 2-3 क्लासेस में आप लोग ऑनलाइन होंगे। आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, कि हम लोग इसको आगे जाके पढ़ ले, ठीक है। और आप लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जब हम ऑनलाइन होंगे तो मैं आप लोग को पहले से ही 1 दिन पहले से मैं आपको बता दूंगी क्या मैं कल इस टाइम क्लास लूंगी, तो आप आ जाए। और उस टाइम ऑनलाइन होंगे तो मैं आप लोगों को इस मीटिंग के अंदर आप डाउनलोड कर ले अपने लिए जूम ऐप को, तो मैं आप लोग को इस मीटिंग के पार्टिसिपेंट बना लूंगी। अपने इस मीटिंग का अपने मतलब जो भी मीटिंग होगी, जो भी हमारी क्लास होगी, तो उसका पासवर्ड और सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इन द ग्रुप। और पहले से 1 दिन पहले मैं आप लोगों को टाइमिंग्स के बारे में बता दूंगी। So this was all about our today's class. Inshallah, see you in the next class. और नेक्स्ट क्लास में मैं आप होपफुली मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ऐड कर लूँ, ठीक है, एज अ पार्टिसिपेंट इन द मीटिंग। तो आप लोगों की जो वरीज हरीज होंगी रिलेटेड टू द पेपर, जो डिस्कशन होगी रिलेटेड टू डिफरेंट पॉइंट्स इन द लेक्चर, तो आप वो भी अच्छे से पूछ सकेंगे। यू विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस एंड क्लियर योर वरीज and confusions then inside the class or during the class. Okay, Allah Hafiz.